بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقاد سلطان عماد الدین زنگی کے دور کے ایک مجاہد کی اولو الانگیز داستان، ایپیسوڈ نمبر 6۔ سورج جب غروب ہو گیا تو عامر ثعلب کے سرائے سے نکلا۔ دریائے آبانہ کی طرف آنے کے بجائے وہ اس شاہراہ پر چڑھ گیا جو حمیص اور وہاں سے مورۃ النعمان کی طرف جاتی تھی۔ چند میل اس شاہراہ پر شمال کی طرف جانے کے بعد عامر دائیں ہاتھ کو مڑ گیا۔ اب وہ گناب اور بھولی بصری راستوں پر ہوتا ہوا بنو عبس اور بنو زیبان کے درمیان پڑنے والے کوہستانی سلسلے جبل ہلال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنی وسطی سے دور ہی دور گزرتا ہوا عامر آگے نکل کر جبل ہلال کی اس چوٹی پر چڑھنے لگا جس کے اوپر نائرہ ہر روز مغرب کے بعد اس کا انتظار کیا کرتی تھی۔ عامر کا گھوڑا ہی نیناتا ہوا جب پہاڑ کے اوپر چڑھا تو اس نے دیکھا وہ کوہستانی چوٹی اداس پڑی تھی اور وہاں نائرہ نہ تھی۔ عامر نے سوچا وہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی ہوگی اور جب وہ گھوڑے سے اترے گا تو اچانک باہر نکل کر اس کی طرف بھاگے گی۔ عامر اپنے گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا، اس کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ اچانک عامر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے فوراً گھوڑے کی زین سے اپنی ڈھال اتار لی اور ایک سخت غصیلی جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بھی کھینچ لی تھی۔ اس کے سامنے پتلی زمین پر خون میں لت پت نائرہ کی لاش پڑی تھی۔ عامر لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے نائرہ کا بازو تھاما جو ابھی گرم تھا، تاہم نبض بند ہو چکی تھی اور نائرہ بیچاری دم توڑ چکی تھی۔ عامر ابھی کسی نتیجے پر پہنچنے نہ پایا تھا کہ اچانک پتھر کی اوٹ سے 6 عبسی جوان کہے لگاتے ہوئے نکلے۔ عامر ایک دم کھڑا ہو گیا اور غور سے ان کی طرف دیکھا۔ ان سب کا تعلق اس کے اپنے قبیلے سے تھا اور ان کا سردار شعبہ بن عجل تھا جو اسود بن علقمہ کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ شعبہ بن عجل چند قدم آگے بڑھا اور پھر عامر کو مخاطب کر کے اس نے کہا، ہمیں امید تھی کہ تم ضرور یہاں آؤ گے۔ یہ بات پہلے ہی ہمارے علم میں تھی کہ تم سالم بن عقبہ کی لڑکی سے روزانہ مغرب کے بعد ملنے یہاں آتے ہو۔ ہم نے اس لیے تعارض نہ کیا تھا کہ شاید کبھی تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اسود بن علقمہ اور اس کے بیٹوں کو قتل کر کے تم ساری حدیں پھلانگ گئے ہو۔ اب تمہارا قتل بنو عوف پر فرض ہو چکا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اور میرے ساتھی تمہاری طرف بڑھے، تم کسی کو اپنی مدد اور حمایت کے لیے پکارنا چاہتے ہو تو پکار لو تاکہ تمہیں احساس نہ ہو کہ تم نہتے اور اکیلے ہو۔ عامر کے چہرے پر خشونیت اور درندگی برس گئی تھی۔ اس نے قہر برساتی آواز میں کہا، اے اجل کے بیٹے، سالم بن عقبہ کی بیٹی کو قتل کر کے تم اور تمہارے ساتھیوں نے خود اپنی موت پر مہر لگا دی ہے۔ خدا کی قسم تم اتنے جوان اور لے آؤ تو بھی میں جبل ہلال کی اس چوٹی پر تم سب کو موت سے ہمکنار کر دوں گا۔ شعبہ بن عجل چند قدم اور آگے بڑھا اور غصیلی آواز میں کہا، ہمیں قبیلے کے اکابر کی تاکید ہے کہ تمہیں زندہ پکڑ کر قبیلے میں لایا جائے تاکہ قبیلے کے اکابر ہی تمہارے جرائم کی سزا دیں۔ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم سے کوئی تعارض نہ کریں گے۔ اگر تم نے ہم سے ٹکرائے جانے کا ارادہ کیا تو ہم تمہاری گردن کاٹ کر ساتھ لے جائیں گے۔ عامر نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں قبیلے کی اندھی روایت کا پابند نہیں ہوں۔ مجھے قتل کی دھمکی دے کر تم خود اپنے اندرونی خوف اور ہراس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تم سب کو کاٹ کر ہی جبل ہلال کی اس چوٹی سے نیچے اتروں گا۔ یاد رکھو، سالم بن عقبہ کی بیٹی نائرہ میری زندگی کا سرمایہ اور پونجی تھی۔ اس کے لوٹ جانے کے بعد میری زندگی میں کیا دلچسپی رہے گی؟ آگے بڑھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ عامر بن نافع سے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ شعبہ بن عجل نے پھر کپکپاتی آواز میں کہا، آخری فیصلہ کرنے سے قبل خوب اچھی طرح سوچ لو، ہم نہیں چاہتے ہمارے ہی ہاتھوں ہمارے قبیلے کے جوان کا خون ہو۔ عامر نے صرف ایک نگاہ میں حالات کا جائزہ لیا، پھر شاید اس نے آخری فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ایک لمبی جست کے ساتھ وہ شعبہ بن عجل پر حملہ ور ہوا تھا۔ لیکن شعبہ بھی چوکس ہو گیا تھا۔ اس نے عامر کا وار اپنی ڈھال پر روکا، لیکن عامر اپنا دوسرا حربہ آزما چکا تھا۔ اس نے اپنی ڈھال شعبہ بن عجل کے منہ پر دے ماری۔ شعبہ کا تو توازن بگڑ گیا، وہ لڑکھڑایا اور اسی لمحے عامر کی تلوار بلند ہو کر گری اور شعبہ بن عجل کو کاٹ کر رکھ گئی تھی۔ شعبہ بن عجل کے قتل ہوتے ہی اس کے 5 ساتھی بھوکے گدھوں کی طرح عامر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ عامر بار بار پنترے بدل کر اپنے آپ کو بچانے کے علاوہ ان پر مہلک حملے بھی کرنے لگا تھا۔ وہ 5 اس کوشش میں تھے کہ عامر کو اپنے درمیان گھیر کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن عامر انہیں ایسا کوئی موقع نہ دے رہا تھا۔ اچانک عامر کی تلوار ان میں سے ایک پر گر گئی، وہ بھی بھیانک چیخ کے ساتھ پتریلی زمین پر گر گیا تھا۔ اس سے قریب ہی لڑنے والے جب گھبراہٹ میں اپنے مرنے والے ساتھی کی طرف دیکھ رہے تھے تو عامر نے اس کی اس غفلت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا اور اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ اب باقی 3 عبسی رہ گئے تھے اور وہ ایک دوسرے کو سوال انداز میں دیکھ رہے تھے۔ عامر نے ایک بار پھر حملہ ور ہونے میں پہل کی۔ رات کی خاموشی اور سناٹے میں
वो फिर उनकी तरफ भागा और उनके एक और साथी को गुम करता हुआ वो आगे निकल गया था। अब मुकाबले में सिर्फ 2 आपसी बाकी रह गए थे। आमिर उनके सामने आया और एक जगह जमकर उनका मुकाबला करने लगा था। वो दोनों बेहद खौफ और हिरास में थे। वो बादल नखस्ता मुकाबला करने के लिए तैयार हुए थे, इसलिए कि वो जानते थे कि भागने की सूरत में आमिर पुष्ट की तरफ से उन्हें काट कर रख देगा। अचानक आमिर की तलवार उनमें से एक का शाना जख्मी करती हुई निकल गई। जो ही वो जख्म की ताब ना लगाते हुए जमीन पर गिरा, आमिर की तलवार उस पर गिरी और उसे खत्म करती चली गई। अपने साथी को कत्ल होते देखकर आखिरी अब से भाग खड़ा हुआ आमिर ने अपना खंजर निकाला और ताक कर उसे मारा। खंजर पुष्ट की तरफ से उसका दिल चिरता हुआ निकल गया और वो गिर कर ढेर हो गया। आमिर आगे बढ़ा, उसके जिस्म से खंजर निकालकर जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसे महसूस हुआ कि जबले हिलाल की इस चोटी पर कई लोग चढ़ाए हों। उसने जब अपने बाएं तरफ देखा तो सालम बिन उकबा, नकीब और साद वलीद के अलावा कुछ और ज़ेबानी जवान भी पहाड़ पर चढ़ाए थे। वो नायरा के खून आलूद लाश के पास आ खड़े हुए थे। आमिर उनके करीब आया। चंद लम्हों तक नायरा की लाश को बड़ी हसरत और बड़ी वीरानी के साथ देखता रहा। फिर पुरदा लहजे में उसने सालम बिन उकबा को मुखातिब करके कहा, अरे अभी नायरा, तुम्हारी बेटी के कत्ल का मैं जिम्मेदार हूँ। जो भी मैं सजा देंगे, जो भी आप मुझे सजा देंगे, मैं कोई तारुफ, कोई शिकवा ना करूंगा। काश मैं थोड़ी देर कबल यहाँ पहुंच गया होता और इन भीड़ों से नायरा को बचा सकता। आमिर ने अपना खून आलूद खंजर सालम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये खंजर लो और मेरे सीने में घोंप दो कि मैं ही वो गुनहगार हूँ जो नायरा की हिफाजत ना कर सका। सालम बिन उकबा ने खंजर लेकर आमिर की कमर से बंधी हुई मियान में डाल दिया। फिर पहाड़ की चोटी पर बिखरी हुई बनो अब्स के जवानों की लाशों को गौर से देखते हुए उसने कहा, आमिर आमिर, मैं नहीं जानता तुम नायरा को कब से चाहते हो, ताहम तुम अगर पहले ही मुझे इस बात से आगाह कर देती तो शायद तुम दोनों को इस टेले पर मुलाकात करने की जरूरत महसूस ना होती। नायरा रोजाना मगरिब के वक्त घर से निकलती थी और मैं यही समझ रहा था कि वो अपनी सहेलियों के पास जाती है। आज अगर वो जिंदा होती तो खुदा की कसम मैं उसे तुमसे ब्याह देता और मुझे तुम जैसे फर्जंद पर फख्र होता। काश मैं अपनी आंखें खुली रखता और अपनी बेटी की हिफाजत का सामान करता। हम तो तुम्हारे हाथों मरने वाले अफसी की चीख सुनकर यहाँ आए हैं। काश। सालिम ने किसी कदर तवकुफ के बाद कहा, अब वक्त गुजर चुका है, मेरी पूंजी लूट चुकी है और मेरे पास मायूसी के सिवा कुछ नहीं रहा। फिर सालिम ने आमिर की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम ही इसकी लाश को उठाओ और ये तुम्हारे हाथों में ही अच्छी लगती है। आमिर ने नीचे झुका और नायरा की लाश को उसने उठा लिया। सब गर्दनें झुकाए जबले हिलाल की उस चोटी से नीचे उतरने लगे थे। जब वो बस्ती के कब्रिस्तान के अंदर से गुजर रहे थे, सालिम ने कहा, आमिर बेटे, लाश यही रख दो, मैं नायरा की तकफीन करके ही बस्ती में दाखिल होऊंगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि बेटी की लाश को घर ले जाऊं और बस्ती के औरतों की बीन सुनो और उनका वाविला देखो। आमिर ने नायरा की लाश को घास पर रख दिया। इतने में सालम ने अपने करीब खड़े एक जवान को मुखातिब करके कहा, तलिया तलिया बस्ती में जाओ और लोगों से कहो कि सालम बिन उकबा की बेटी मर गई है। जिसने नमाज जनाजा करनी हो वो जनाजे में आ जाए। वो जवान जिसे तलीहा कहकर पुकारा गया था बस्ती की तरफ चला गया था। अचानक कुछ घुड़सवार कब्रिस्तान में दाखिल हुए और वहां खड़े होकर सब लोगों को उन्होंने अपने घेरे में ले लिया। आमिर ने देखा वो सब ताहिर अल मरज़गानी के आदमी थे। उनमें से एक पुख्ता उम्र का सवार और नजदीक हुआ और उनमें से सबको मुखातिब करके कहा, तो उन लोगों में बनो ज़ेबान का सरदार कौन है? सालिम बिन उकबा ने कहा, मैं बनो ज़ेबान का सरदार हूँ, मेरा नाम सालिम बिन उकबा है। उस नवारिद ने कहा, तुम आमिर बिन नाफे को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारे कबीले के किसी भी शख्स से कोई तारुज नहीं करेंगे। सालिम ने सख्त लहजे में कहा, अगर मैं इसकी हिफाजत करूं और तुम्हारे हवाले ना करूं फिर तो हम आमिर बिन नाफे के साथ तुम्हें भी पकड़कर दमिश्क ले जाएंगे। सालिम बिन उकबा ने चिल्ला कर कहा, अपने हवास में रहकर बात करो, याद रखो मेरी सिर्फ एक पुकार पर कबीले के अनगिनत जवान यहाँ जमा हो जाएंगे और तुम्हें टुकड़ों में काट देंगे। जाओ यहाँ से चले जाओ। आमिर बिन नाफे बनो ज़ेबान का मेहमान है और मेरे कबीला अपने मेहमान की हिफाजत करेगा। उस नवारिद ने गौर से सालिम की तरफ देखते हुए कहा, तुम भूल रहे हो जिस कदर जवान मेरे साथ है उससे कहीं ज्यादा मेरे ही जवान अभी कब्रिस्तान से बाहर खड़े हैं। तुम्हारे ज़हन में कोई गलत फहमी तो निकाल दो। उसके साथ ही उसने कब्रिस्तान के बाहर खड़े अपने साथियों को आवाज दी और वो अपने घोड़े दौड़ाते हुए उसके पास आ खड़े हुए थे। उस नवारिद ने फिर सालिम बिन उकबा से पूछा, अब तुम्हारा क्या फैसला है? सालिम ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे अपने साथियों की तादाद से मरगूब नहीं कर सकते। मेरा अब भी वही फैसला है, मैं आमिर बिन नाफे की हिफाजत करूंगा। नवारिद ने तंजन कहा, क्यों अपनी जात को और अपने पूरे कबीले को मौत और तबाही में झोंकते हो? मैं तुम्हें सिर्फ उस नवारिद को रुक जाना पड़ा क्योंकि कब्रिस्तान के चारों तरफ टापों की तेज आवाजें सुनाई दी थी। ताहिर अल मरज़गानी के आदमी परेशान और हिरास हो गए थे। अभी वो किसी नतीजे पर भी ना पहुंचे थे कि अनगिनत सवार उनकी तारीकी कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए और ताहिर अल मरज़गानी के आदमियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। कब्रिस्तान के अंदर एक भगदड़ और तूफान उठ खड़ा हुआ था। सालिम और उसके जवान एक तरफ हट कर खड़े हो गए थे
ताहिर अल-मरज़गानी के कुछ आदमियों ने फिरार हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने ऐसी सख्ती के साथ उनका घेराव किया कि उनमें से कोई भी ना बच सका और नए नए आने वाले हम सवारों ने उन सबको तहे तेग कर दिया। आमिर सालिम बिन उक़बा के पहलू में अभी तक शशदा और हैरान खड़ा था। वो अभी तक ये ना जान सका था कि नए हमलावर कौन है, इसलिए कि वो सब अपने चेहरों पर नकाब डाले हुए थे। अचानक एक सवार अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, आमिर के पास आकर रुक गया और घोड़े से नीचे कूदकर उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो दमिश्क का साबिक मुहतसिब जमालुद्दीन था। उसने अपने बाजू फैला दिया और आमिर भागकर बच्चों की तरफ से लिपट गया। जमालुद्दीन ने आमिर की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं माजरत खा हूँ कि मुझे यहाँ पहुंचने में कुछ ताखिर हुई। आमिर ने अलहदा होते हुए कहा, आपने इस कदर मुस्लिम जवानों का इंतजाम कहाँ से कर लिया? जमालुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, दमिश्क में ऐसे जवान की कमी नहीं जो हमारी ही ख्वाह और मुखलिस है। हमें किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है और करीब तुम देखोगे कि हम ताहिर अल-मरज़गानी पर भी इसी तरह हमलावर होंगे। जो ही हम बुरी को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत उसकी गद्दारी का मुहैया करने में कामयाब होंगे तो हम उसी के खिलाफ भी हरकत में आते हुए देर ना करेंगे। आजकल ताहिर अल-मरज़गानी पर हमारी कड़ी नजर है और वो दिन दूर नहीं जब वो दमिश्क के अंदर अपनी जिंदगी की बदतरीन नोश्तों और अपने हयात के कठिन तरीन अय्याम का सामना कर रहा होगा। आमिर आमिर मेरे बेटे, मैं मुतमईन हूँ कि तुमने सकला से अपने बाप का इंतकाम ले लिया है। ताहिर अल-मरज़गानी अब और ज्यादा सख्ती से और खुलकर तुम्हारे सामने हरकत में आएगा। बेहतर है तुम कुछ अरसे के लिए रूपपोश हो जाओ। तुम्हारा अब अपने कबीले में या बनो ज़िबान के अंदर रहना खतरे से खाली नहीं। अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें साथ के साथ मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना कर दूं। वहां मेरे जानने वाले हैं, तुम उनके यहाँ क़याम कर सकते हो। आमिर ने कपकपाती आवाज में कहा, आपका फैसला दुरुस्त है। मैं आज रात में यहाँ से कूच कर जाऊंगा। मेरी मंजिल ईसाइयों के किला हारिम की सरहद पर पड़ने वाली बस्ती अस्फीर होगी, जहाँ का एक ताजिर नजर बिन असवद मेरा जानने वाला है और वो मुझे वहां आने की दावत भी दे चुका है। जमालुद्दीन ने आमिर को फिर अपने साथ लिपटाते हुए कहा, आमिर आमिर अपने जहन में ख्याल ना रखना कि तुम निहत्ते और तन्हा हो। खुदा की कसम तुम मेरा सरमाया हो और मैं अपनी हुदूद से बाहर निकलकर भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। इसके साथ ही जमालुद्दीन ने अपने घोड़े के खिलचिन में हाथ डाला और नकदी की एक थैली आमिर को थमाते हुए कहा, इसे अपने पास रख लो। गरीबुल वतीनी के इस दौर में ये तुम्हारे काम आएगी। अब मुझे इजाजत दो, मैं वापस लौटता हूँ। मेरा फौरी तौर पर दमिश्क पहुंचना जरूरी है, वरना कई खदशात और शुबहात उठ खड़े होंगे। इतनी देर तक जमालुद्दीन के जवान ने ताहिर और मरज़गानी के मरने वाले आदमी को कब्रिस्तान के अंदर गड्ढे खोद कर दफन कर दिया। जमालुद्दीन ने फिर आमिर के गले लगाते हुए कहा, मैं अब जाता हूँ। दमिश्क के अंदर हालात दुरुस्त करने के बाद मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए खुद अस्फीरा नाम की उस बस्ती में आऊंगा। जमालुद्दीन अलहदा हुआ और अपने साथियों के साथ कूच कर गया। इतने में बस्ती की तरफ से बनो ज़िबान के बहुत से लोग आ गए थे। सब ने मिलकर नायरा का जनाजा अदा किया और उसे दफन करके वो गमगीन और अफसरदा दिलों के साथ बस्ती की तरफ जा रहे थे। आमिर भी उनमें शामिल था। उसकी गर्दन झुकी हुई, पलकें भीगी हुई थी और उसका घोड़ा उसके साथ साथ चल रहा था। नायरा की तजहीज़ व तकफीन के बाद सालिम बिन उक़बा आमिर, नकीब, साद और वलीद के साथ अपने दीवान खाने में आया। आमिर ने देखा उनके साथ एक और जवान दीवान खाने में दाखिल हुआ था जो उसके लिए अजनबी था। आमिर ने सवाल अंदाज में सालिम बिन उक़बा की तरफ देखा। सालिम शायद आमिर का मतलब समझ गया, लिहाजा उसने अजनबी जवान की तरफ इशारा करके कहा, इसका नाम मुनीस है और ये नजर बिन असद की तरफ से आया है। सालिम कुछ और कहना भी चाहता था कि मुनीस खुद ही बोला, अगर मैंने आपको पहचानने में गलती नहीं की तो आप आमिर बिन नाफे हैं। आमिर ने आगे बढ़कर उससे मुसाफा करते हुए कहा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, मैं ही आमिर बिन नाफे हूँ। सब दीवान खाने की नशिस्तों पर बैठ गए। मुनीस आमिर के पहलू में बैठा हुआ बोला, मेरा नाम मुनीस है, मुझे नजर बिन असद ने आपको लाने के लिए भेजा है। वो बीमार है और बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं। किला हरम के ईसाई हुक्मरान ट्यूतुस, जो एक शरपसंद और मुतसिब इंसान है, उसने सरहदी मुसलमानों की जान और माल को गैर महफूज कर रखा है। वो जब चाहता है मुसलमान आबादियों को लूट लेता है। सरहदी मुसलमान उसके खौफ और दहशत से अपने घरों को छोड़ छोड़ कर महफूज इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। अगर ऐसी हालत कुछ अरसा और रही तो सरहद की सारी बस्तियां उजड़ जाएंगी और ट्यूतुस को आप मुसलमानों को एक वसी इलाका हाथ लग जाएगा। नजर बिन असद चाहते हैं कि आप सरहदी मुसलमानों का नजात दहिंदा बनकर वहां आए। उन्हें उम्मीद है कि आपकी सरकर्दगी में जब सरहदी बस्तियों के जंगजू जवान जमा होंगे तो वो उन रास्तों का सदेबाब कर देंगे जिन्हें रोनता हुआ ट्यूतुस मुसलमानों को अपनी तरफ ताज तबाही और बर्बादी का निशाना बनाता है। क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप इनकार नहीं करेंगे? आमिर ने बड़ी आजिजी का इजहार करते हुए कहा, तुम्हारी आमद से कबल ही मैं नजर बिन असद के पास जाने का फैसला कर चुका हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं, ताहम कुदरत अगर मुझे से सरहदी मुसलमानों की खिदमत का काम लेना चाहती है तो मैं आखिरी दम तक उनका साथ दूंगा। अगर मैं अपने खून के वज़ भी अपनी मिल्लत और कौम के अपकारी कर सका
तो ये मेरे लिए एक सादत से कम ना होगा। अगर तुम थकावट महसूस नहीं कर रहे हो तो मैं आज अभी और इसी वक्त तुम्हारे बस्ती सफीरा की तरफ कूच करने का अज़म कर चुका हूँ। मोनिस के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान की लहरें बिखर गई। उसने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, आप मेरी थकावट का ख्याल ना कीजिए। खुदा की कसम, आप जैसे सालार के साथ मैं उस कायनात की आखिरी हुदूद तक भी बरहना पा सफर करने को तैयार हूँ। आमिर जवाब में कुछ कहने वाला था कि दीवान खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। सालिम ने उठकर जब दरवाजा खोला तो उसने देखा वहाँ आमिर का भाई अदनान बिन काब खड़ा था। उसने अपने आप को एक भारी ऊनी कंबल में छुपा रखा था। सालिम उसे पहचान गया और दरवाजे के दोनों पट खोलते हुए उसने कहा, अंदर आ जाओ, तुम इस घर के लिए अजनबी नहीं हो, फिक्रमंद ना हो, तुम्हारा भाई ही है। अदनान अंदर दाखिल हुआ। आमिर उसे देखते ही खड़ा हो गया और आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटाते हुए कहा, खैरियत तो है, तुम जख्मी हो, यहाँ किस लिए आए? क्या कबीले वालों ने मेरी वजह से तुम लोगों को तंग तो नहीं किया? नकीब, साद, वलीद और मुनीस भी अपनी जगह पर उठ खड़े हो गए थे। अदनान ने अलहिदा होते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, कबीले वाले आपसे इस कदर खौफजदा हैं कि वह आंख उठाकर भी हमारी तरफ देखने की जुर्रत नहीं करते। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि थोड़ी देर कल दमिश्क से ताहिर अल-मरज़गानी के कुछ सवार आए थे। पहले वो हमारी बस्ती में आए, फिर आपको तलाश करते हुए बाहर निकल गए। वो बड़ी सरगर्मी से आपको तलाश कर रहे होंगे। मुझे बाबा ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा कि आमिर से कहो कि यहाँ से भाग जाए, वरना उसके लिए अनगिनत खतरात उठ खड़े होंगे। मेरा साथ उरूब भी आई है। मैं उसे जबल हिलाल के अंदर एक महफूज जगह खड़ा कर आया हूँ, वो आपसे मिलना चाहती है। आमिर ने सालिम की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं मुनीस के साथ यहाँ से कूच करता हूँ। बस्ती से बाहर निकलकर अपनी बहन उरूब से मिलने के बाद मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। सालिम ने कबली नकीब के बोलते हुए कहा, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं और साद भी आपके साथ जाने का फैसला कर चुके हैं। सालिम बिन उकबा ने नकीब की तारीफ करते हुए कहा, हाँ आमिर, ये दोनों भी तुम्हारे साथ जाएंगे। गरीबुल वतीनी की इस दौर में ये दोनों तुम्हारे भाई और मददगार होंगे। आमिर ने अदनान की तरफ देखते हुए कहा, तुम बैठो, मैं अपना घोड़ा ले आऊं। नकीब ने साद का हाथ पकड़कर बाहर निकलते हुए कहा, आमिर से कहा, हम दोनों थोड़ी थोड़ी देर तक आते हैं। दीवान खाने से निकलकर आमिर जब शहर में आया तो सालिम और वलीद उसके साथ साथ थे। दोनों बाप बेटा एक कमरे में गए। थोड़ी देर बाद जब वो लौटे तो सालिम के हाथ में नकदी की एक थैली थी और वलीद ने एक बिस्तर लपेट कर उठा रखा था। दोनों बाप बेटा आमिर से करीब आए, जो अस्तबल में अपने घोड़े के पास खड़ा उसकी गर्दन थपथपा रहा था। इतने में मुनीस भी दीवान खाने से निकल आया। वो भी अस्तबल में अपने घोड़े के पास आ खड़ा हुआ था। करीब आकर सालिम ने नकदी की थैली जमीन से लटकती हुई खिचिन में डालते हुए आमिर से कहा, बेटे, जिस मकसद के तहत तुम नजर बिन असद के पास जा रहे हो, वहाँ जवानों को मुत्तहद करने और उन्हें तरगीब देने और मुस्लिह करने के लिए नकदी तुम्हारे काम आएगी। आमिर खामोश रहा। वलीद ने बिस्तर उसकी जेन से बांध दिया। इसके बाद वलीद ने अस्तबल के अंदर से दाने और चारे की दो तो बुरे भरे और उन्हें आमिर और मुनीस के घोड़ों से बांध दिया था। सालिम आमिर के करीब आया और आमिर को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, वहां जाकर हमें भूल न जाना और जब हालात दुरुस्त हो जरूर हमारी तरफ आना। गो नायरा तुमसे मोहब्बत करती हुई मारी गई है और मेरे पास कुछ नहीं रहा जो इस कोच के वक्त मैं तुम्हारी झोली में डाल सकता। काश वो जिंदा होती और उस कोच के वक्त मैं उसे तुमसे ब्याह कर तुम्हारे साथ रवाना कर देता, लेकिन मेरे पास अब आह व फिगा के सिवा कुछ नहीं रहा। तुम नायरा की मोहसिन हो, वो तुमसे मोहब्बत करती रही है, इस लिहाज से तुम मेरी बेटी की निशानी हो। खुदा की कसम, मैं बड़ी बेचैनी से तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। बाहर गली में टापों की आवाज सुनाई दी। सालिम ने अलहदा होते हुए कहा, शायद नकीब और आमिर आ गए हैं। आमिर और मुनीस दोनों ने अपने घोड़े खोल लिए। सालिम और वलीद के साथ वो बाहर आए। गली में दीवान खाने के बैरूनी दरवाजे के सामने आमिर और नकीब खड़े थे। वो अपना पूरा जंगी लिबास पहने हुए थे और अपने घोड़ों की जेनों से उन्होंने बिस्तर भी बांध रखे थे। आमिर ने अदनान को आवाज दी और वो भी उठकर बाहर आ गया। आमिर ने पहले ही जर्रा पहन रखी थी। जेन से लटकता हुआ खुद उतार कर उसने सर पर रखा और सालिम की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपको अल्लाह हाफिज कहता हूँ। हालात अगर साजगार हुए तो आपकी खिदमत में हाजिर होते हुए मैं सादत समझूंगा। आमिर ने पहले अपने घोड़े पर अदनान को बिठाया, फिर उसके अलावा नकीब, साद और मुनीस ने भी सालिम और वली से मुसाफा किया और वहां से रवाना हो गए थे। अदनान की रहनुमाई में उस जगह पर आया जहाँ उरूब को बैठा गया था। नकीब, साद और मुनीस जरा दूर ही खड़े हो गए, जबकि आमिर और अदनान आगे बढ़े। एक जगह वो दोनों घोड़े से उतर गए। इतने में एक पत्थर के पीछे से उरूब निकली और अखी पुकारती भागकर आमिर से लिपट गई थी। जब वो हिलाल के इस हिस्से में चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर उरूब ने अलहदा होते हुए पूछा, आखी क्या आप यहाँ से कूच कर रहे हैं? उरूब की आवाज रो देने वाली थी। आमिर ने भी उदास लहजे में कहा, हाँ उरूब, मैं यहाँ से कूच कर रहा हूँ। मेरी मंजिल शुमाल मगरिब के एक सरहदी बस्ती से असफीरा है। उरूब की आंखों में आंसू उमड़ आए, जिन्हें उसने पूछते हुए कहा, अखी एहतियात से यहाँ से निकलिएगा, ताहिर अल-मरज़गानी के कई सवार आपको तलाश कर रहे हैं। आमिर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्रमंद ना हो,
हम उनसे पहले ही निमट चुके हैं और वो सब इस दुनिया में नहीं है। उरूब आमिर के सामने खड़ी रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। इतनी देर में अदनान उस पत्थर के पीछे से जहाँ उरूब छुपी बैठी थी, दो बड़े बड़े मशकीज़े और दो छोटी छोटी गठरियां उठा लाया। उरूब ने वो सामान आमिर को दिखाते हुए अपनी रोती और सिसकते आवाज में कहा, आखिर ये दो मशकीज़ों में से एक मैंने शहद और दूसरे में अनार का रस है। फिर उरूब ने एक खटरी खोल कर दिखाई, उसमें शक्कर मिले हुए सत्तू थे, रास्ते में आपके काम आएंगे। अब उरूब ने आखिरी खटरी खोल कर दिखाई, वो सुनहरी सिक्कों से भरी हुई थी। आमिर ने कहा, इसे रहने दो उरूब, मेरे पास नकदी है। उरूब की आवाज बिल्कुल ही डूब गई। ये आपको लेना होगी अखी, एक बहन अपने भाई को जुदा करते वक्त इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ये मेरी बदबख्ती है कि मेरा भाई बदतरीन हालात में यहाँ से कूच कर रहा है। काश मैं उरूब इससे आगे कुछ ना कह सकी। इसकी आवाज डूब कर खत्म हो गई और वो आमिर से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी थी। करीब खड़ा अदनान भी रो रहा था और आमिर के आंसू उरूब के सर पर गिर रहे थे। उरूब की हिचकिचियां और सिसकियां वहां तक सुनाई दे रही थी जहां नकीब, साद और मुनिस खड़े थे। फिजाओं में चंद लम्हों तक बेकिरां खामोशी में उरूब की सिसकियां उभर रही थी। फिर आमिर ने उसे अलहदा करते हुए कहा, अब तुम अदनान के साथ घर जाओ। उरूब, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे 3 साथी भी हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अदनान ने आगे बढ़कर वो सामान जेन से बांध दिया जो वो दोनों बहन भाई लाए थे। फिर आमिर घोड़े पर सवार हुआ और अपने साथियों से जा मिला। उरूब और अदनान एक पत्थर पर खड़े होकर उन्हें देखने लगे। जब वो उनकी नजरों से ओझल हो गए तो दोनों बहन भाई गम और दुख में डूबे अपनी गर्दनें झुकाए रात के परहोल सन्नाटे में अपनी बस्ती की तरफ जा रहे थे। अदनान और उरूब से मिलने के बाद आमिर और उसके तीनों साथी मगरिब के रुख पर आगे बढ़ते हुए शाहरा पर चढ़ गए, जो बसरा की तरफ से आकर मोरतुल नोमान, रासु शमरा और रमा शहरों की तरफ चली गई थी। शुमाली मगरिब के रुख पर सफर करते हुए दरियाए आसी के किनारे जोला शहर में दाखिल हुए। ये दरियाए अंताकिया की तरफ से आता है और जोला शहर के जुनूब में एक तवील बल खाकर बहरे रूम की तरफ चला गया है। जोला शहर में उन्होंने थोड़ी ही देर एक सिराय में क्याम करके खाना खाया और अपने घोड़े के चारे का इंतजाम भी किया। जोहला से निकलकर अब शाहिरा दरिया के किनारे किनारे शुमाल की तरफ जा रही थी। वो शुमाल की तरफ बढ़ते रहे यहाँ तक कि वो हमीस शहर में दाखिल हुए। एक रात उन्होंने यहाँ बसर की। यहाँ वो दरिया को अबूर करके बाएं किनारे पर आए और दोबारा दरिया के किनारे किनारे शुमाल की तरफ बढ़ने लगे थे। हमीस से निकलकर वो तरतूस शहर में आए। यहाँ आकर दरियाए आसी दाश्त के शाम में मशरिक की तरफ एक लंबा चक्कर काटता है और फिर शुमाल मगरिब की तरफ झुक जाता है। तरतूस से रासु शमरा आए। यहाँ उन्होंने अपना रुख बदला। रासु शमरा से बाहर एक बड़ा चौक था जहाँ 2 शाहिराएं आकर मिलती थी। एक शाहिरा तो वो थी जो जुनूब में बसरा की तरफ से आती थी और शुमाल में अलमरा शहर की तरफ चली गई थी। दूसरी शाहिरा जो शरकन करबन थी, उसका मगरबी हिस्सा रासु शमरा से होता हुआ वादी जबला से गुजरकर जबला और लाजकिया शहरों की तरफ चला गया था, जबकि मशरिक की तरफ यही शाहिरा दरिया आसी को पार करके हम्माद और हलब शहरों की तरफ चली गई थी। मुनिस की रहनुमाई में आमिर, नकीब और साद उस शाहिरा पर चढ़ गए थे जो जबला और लाजकिया शहरों की तरफ जाती थी। मगरिब की तरफ सफर करते हुए अब वो कोहिस्तानी जबला के अंदर तंग रास्तों में होकर गुजर रहे थे, यहाँ तक कि वो वादी जबला में दाखिल हुए। वादी में जहाँ तक निगाह काम करती थी हरे हरे खेत दिखाई दे रहे थे। फसीलों की हालत तबाह बताती थी कि ये सरजमीन ज़राअत के लिए निहायत मौजू है। वादी के अंदर कई बस्तियों के पास से गुजरने के बाद एक रोज शाम से थोड़ी देर कबल मुनिस उन्हें लेकर अपनी बस्ती अस्फिरिया में दाखिल हुआ। ये बस्ती एक छोटी शहर जैसी थी। बस्ती का एक लंबा और वसी बाजार था जहाँ जरूरत की हर चीज मुयस्सर थी। बस्ती के ज्यादातर मकान पुख्ता थे और सुर्ख सियाह पत्थरों से बने हुए थे। बस्ती से बाहर एक खुला मैदान था जिसके अंदर कुछ सवार घुड़सवारी और नेजाबाजी की मशक कर रहे थे। आमिर बस्ती और उसके माहौल को शौक और दिलचस्पी से देख रहा था। एक हवेली के सामने मुनीस रुक गया और दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे के पीछे से नस्वानी आवाज सुनाई दी, कौन है? मोनिस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मोनिस हूँ, दरवाजा खोलो। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और दरवाजा खुलने वाली जो भी थी वो दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ी हो गई थी। मोनिस उन्हें लेकर हवेली के पुख्ता और वसी अस्तबल में आया। यहाँ सब ने अपने घोड़े से जेन उतार दी और उनके मुंह से दाहने निकालकर खुराक के 2 बोरे चढ़ा दिए थे। फिर मोनिस उन्हें लेकर हवेली के एक कमरे में दाखिल हुआ जिसके अंदर नजर बिन असद एक मुसरीफ पर रिजाई ओढ़े लेटा हुआ था। बीमारी ने उसे काफी कमजोर और लागर कर दिया था। नजर बिन असद ने उन्हें देखते ही उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हुआ और लेटते ही लेटे कर्रा कर रह गया। आमिर, नकीब और साद ने आगे बढ़कर बारी बारी उसे मुसाफा किया और नजर बिन असद के सामने एक नशिस्त पर बैठ गए। नजर बिन असद चंद लम्हों तक मीठी मीठी
और पुरशौक निगाहों से आमिर को देखता रहा। फिर उसने नहीफ से आवाज में कहा, आमिर आमिर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था बेटे। बीमारी से कबल मैं हर रोज बस्ती से बाहर पहाड़ की एक चोटी पर खड़ा होकर शाम और सुबह तुम्हारी राह देखता रहा। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी जिंदगी में ही यहाँ पहुंचकर वादी जबला के मुसलमानों को, किला हारम के ईसाई हाकिम तीतुस के मजालिम और तबाही के खिलाफ एक नई उमंग और नया वलवला बख्शोगी। अब मैं मर भी गया तो मुझे सुकून होगा कि तुम्हारे आने से इस वादी के मुसलमान तुम्हारी सालारी और सरगर्दगी में एक दरख्शा और रोशन सुबह का आगाज करेंगे। अब मुझे अपनी मौत इतनी भयानक और वहशतनाक महसूस न होगी कि मुझे यकीन होगा कि तीतुस के मुकाबले के लिए सारी सरहदी बस्तियां अपनी मुंतशिरा और परागंदा कुव्वत को जमा कर लेंगे। जिस नेक मकसद के लिए मैंने तुम्हें यहाँ आने की जहमत दी है, खुदा करे तुम उसमें कामयाब और कामरान हो। आमिर की छाती तन गई और एक अज़म का इज़हार करते हुए उसने कहा, मेरा रब जो बड़ा शफीक और शुक्र, जलील और जब्बार और राफे और रज़ाक है, वो इस नेक अमर में हमारी रहनुमाई और मदद करेगा। मैं सबसे पहले यहाँ के जवानों को जंगी तरबियत दूंगा। इसके बाद आप देखेंगे कि तीतुस के मजालिम का शिकार यही जवान कुन के राजों और जवान जुनून बनकर अपने रब के करम का ला इंतहाई बदौलत तीतुस की जंजीर तोड़कर रख देंगे। उसकी तोक और सलासिल जैसी उम्मीदों और उसके मर्ग हयात के सारे खेलों को नाकाम बना देंगे। हम इसके साथ एक ऐसी और नई जंग का आगाज करेंगे कि उसे हमारी कुव्वत, हमारी बसीरत और जंगी मुमारसत का एहसास होगा। अगर वो अपनी तरफ से बाज आ गया तो ये हमारे लिए ही नहीं, उसके लिए भी एक नेक फाल की मिसल होगा। अगर वो फिर भी बाज न आया तो हम उसके किला हारम के फसीलों तक उसका ताकुब करेंगे और उसकी हुदूद का कोई हिस्सा भी हमारी यलगार और मार्कों से खाली नहीं रहेगा। आप मुतमईन रहे, मैं तीतुस को उससे ज्यादा खतरनाक सूरत इख्तियार न करने देंगे। नजर बिन असद के लबों पर मुस्कुराहट खिल गई। इत्मीनान का लंबा सांस लेते हुए उसने कहा, मुझे तुम जैसे सहराई से यही उम्मीद थी। काश मैं कुछ अरसा तुम्हारे साथ देख सकता। आमिर ने नजर बिन असद का हाथ थामते हुए कहा, आप जान हार ना बैठिए, मेरा रब आपको सेहत देगा। नजर बिन असद ने दुख से कहा, मुझे अब जिंदगी की अब कोई उम्मीद नहीं। देखो बेटे, मेरी औलाद सिर्फ एक बेटी है, इसका नाम आसमा है। ये यूनुस मेरा भतीजा और मेरी बेटी आसमा का शोहर भी है। ये दोनों तुम तीनों को एक भाई और बहन का प्यार देंगे। फिर नसर बिन असद ने मुनिस की तरफ देखते हुए कहा, मुनिस मुनिस, उन्हें यह एहसास न होने देना कि यहाँ अजनबी है। मुनिस ने फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, आप कोई गम न कीजिए, मैं इनके हर हुक्म की पाबंद फर्ज जानकर करूंगा। नसर बिन असद मुस्कुराने लगा। चंद सालों तक वो खामोश रहा। फिर वो जोर जोर से पुकारने लगा, आसमा आसमा। थोड़ी ही देर बाद एक जवान सा लड़की हिरन की तरह भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो नजर बिन असद से पूछा, मुझे आवाज दी बाबा। नजर ने आमिर की तरफ देखते हुए कहा, बेटी ये मेरी बेटी आसमा है। चंद रोज हुए हैं कि इसने शादी मुनिस से हुई है। फिर नजर बिन असद ने आसमा को मुखातिब करते हुए कहा, आसमा मेरी बेटी, ये वही आमिर बिन नाफे है जिसका मैं अक्सर तुम्हारे सामने जिक्र किया करता था, और दूसरी दोनों इसके दोस्त नकीब और साद हैं। तुम्हारा कोई भाई नहीं था, अब ये तीनों तुम्हारे भाई हैं। अब तुम जल्दी जल्दी इनके लिए खाना तैयार कर दो। आसमा के लबों पर मुस्कुराहट फट गई। उसने एक मीठी निगाह उन तीनों पर डाली और बाहर निकल गई। नजर बिन असद ने अब मुनिस की तरफ देखते हुए कहा, मुनिस मुनिस, मेरे बेटे आमिर और उसके साथियों को हवेली का वो हिस्सा दिखा दो जो उनके लिए मखसूस किया गया है। मुनिस उठा और इन तीनों को साथ लेकर बाहर निकल गया। साथ ने खुद नजर बिन असद का इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन नजर बिन असद तंदुरुस्त ना हो सका और उनकी आमद के तीसरे रोज इस फानी दुनिया से कूच कर गया। आमिर नकीब और साथ के साथी साथ कई रोज तक वादी जबला के महलों का जायजा लेता रहा। फिर वो मुनिस के साथ वादी की हर बस्ती में गए और लोगों को तीतुस के खिलाफ मुत्तहद जाने की तरगीब दी। वादी जबला की हर बस्ती के लोगों ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सबसे पहले वादी की सारी आबादी से एक कसीर रकम जमा की गई और कोहिस्तानी जबला का वो हिस्सा जो असफिया के पास से गुजरता था, उसके पहलू में रजाकाराना तौर पर एक फौजी मुस्तकिल की तामीर शुरू कर दी गई। ये रजाकाराना काम था जिसमें हर बस्ती के मर्द औरत ने काम किया। चंद ही हफ्तों में पहाड़ की दामन में एक वसी फौजी मुस्तकिल की इमारत खड़ी हो गई थी। इसके बाद रजाकारों की बाकायदा भर्ती हुई और मुस्तकिल के सामने खुले मैदान के अंदर उनकी जंगी तरबियत शुरू हो गई थी। वादी जबला चारों तरफ से बुलंद बाला पहाड़ के दरमियान घिरी हुई थी और ये सब पहाड़ कोहिस्तानी जबला ही का सिलसिला था। वादी में दाखिल होने के लिए सिर्फ दो रास्ते थे, एक मशरिक की तरफ जो रास्ते शमरा की तरफ से आता था, दूसरा शुमाल की तरफ जो किला हरम और मोरतुल मेहमान की तरफ से आता था। जुनूब और मगरिब की तरफ पहाड़ों के अंदर वादी में दाखिल होने के लिए कोई दर्रा न था। शुमाल की तरफ से आने वाले रास्ते के दरमियान एक नदी पड़ती थी जिसका नाम भी कोहिस्तानी जबला की निस्बत से जुइया जबला था, और ये नदी किला हरम और मुसलमानों की वादी जबला के दरमियान एक सरहद का काम देती थी।
नदी पर दो चोबी पुल थे, एक अस्फरिया के बस्ती के आयन सामने और दूसरा पुल 10 मील नीचे था। नदी में पूरा साल पानी रहता था और एक कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर सांप के बिल खाती हुई मशरिक में दरिया आसी से जा मिलती थी। 3 माह के लगातार मेहनत के बाद मुस्तकिल में खूब रौनक हो गई थी। अब वहाँ 3000 तरबियत याफ्ता जवान थे और कुछ अभी तक जेर तरबियत थे। उसके अलावा नए जवान की आमद का सिलसिला भी जारी था। वादी जबला की सारी मुस्लिम आबादियों ने मुस्तकिल के अंदर मुस्तकिल रहने के वाले मुजाहिदों के लिए गल्ला और रोगन के ढेर लगा दिए थे और रसद और खुराक के जखायर के लिए कई गोदाम भी तामीर कर दिए गए थे। साहब ने कुछ मुनासिब जवानों का चुनाव करके उन्हें मरहब पट्टी करने की तरबियत भी दे दी। इसके अलावा मुस्तकिल में चंद पट्टियां भी लगा दी गई थी जहाँ सनात जंगी सामान तैयार करने लगे थे। वादी जबला के सब मुसलमानों ने मुत्तफिका तौर पर आमिर को अपना सालार मुकर्रर कर लिया था और उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए आमिर दिन रात काम में मसरूफ था ताकि वो तीतुस के सामने सरहदी मुसलमानों को एक कुव्वत बनाकर खड़ा कर सके। एक रोज वादी के एक हिस्से का चक्कर लगाने के बाद आमिर एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर आ खड़ा हुआ। नकीब साद और मोनिस उसके साथ थे। आमिर अपने घोड़े से उतरा और बड़े गौर से जुए जबला को देखने लगा जो बल खाती हुई मगरिब से मशरिक की तरफ जा रही थी और उसका पानी पत्थरों से टकरा कर एक नगमी के साथ बह रहा था। मोनिस ने बड़ी हमदर्दी से पूछा, अरे अमीर, आप क्या सोच रहे हैं? आमिर ने चौंक कर कहा, मैं ये सोच रहा हूँ इस नदी पर लकड़ी के 2 पुल हैं, एक ये जो हमारे सामने नजर आ रहा है और दूसरा 10 मील नीचे। मैंने फैसला किया कि नीचे वाले पुल को आग लगाकर खत्म कर दिया जाए। मोनिस ने सवाल निशान बनाकर पूछा, क्या इसमें कोई मसलियत है? हाँ, मसलियत है। शुमाल की तरफ से जो भी हमलावर हुआ उसे इन पुलों में से एक पर से गुजरकर जरूर गुजरना पड़ता है। हमारी वादी में दाखिल होने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक मगरिब और दूसरा मशरिक। अगर हम नीचे वाले पुल को गिरा दें तो वादी का मशरिकी हिस्सा महफूज हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमलावर आएगा उस पुल पर से आएगा और वो हमारी निगाहों में होगा। आमिर ने जरा रुक कर कहा, आज हमने 2 काम करने हैं, एक तो मशरिकी पुल को गिराया जाएगा और दूसरा काम जो मैंने सोचा वो ज्यादा जरूरी और जंगी अहमियत रखता है। किला हरम की तरफ से आने वाले रास्ता जो सामने वाले पुल के ऊपर से गुजरता है वादी जबला में दाखिल होने से कबल 3 मील तक एक तम दुर्रे की सूरत में आगे बढ़ता है। मैंने इस रास्ते को गौर से देखा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 घोड़े पहलू दौड़ सकते हैं। इस 3 मील के तंग दर्रे के दोनों तरफ पहाड़ों के ऊपर जगह जगह पत्थरों के ढेर लगा दिए जाए। अगर कोई हम पर हमलावर हो तो उसे दुर्रे से गुजरते हुए उस पर पत्थरों की बारिश करके हम उसे एक नई बला और मुसीबत में डाल सकते हैं। नकीब ने पुरतजस्सुस निगाहों से आमिर की तरफ देखते हुए कहा, अरे अमीर, मैं आपकी जंगी ममारसत का कायल होता हूँ। मोनिस भी कुछ कहना चाहता था कि उन्होंने देखा कि एक सवार अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ आ रहा है। उसे देखते ही वो चारों पहाड़ी से नीचे उतर आए। वो जवान उनके करीब आकर घोड़े से कूदा और अपनी सांस पर काबू पाते हुए उसने बदहवासी से पूछा, आप में से आमिर बिन नाफे कौन है? आमिर ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं आमिर बिन नाफे हूँ। तुम घबराए हुए क्यों हो? क्या तुमने किसी से ज्यादती की है या तुम हमारे लिए कोई बुरी खबर लेकर आए हो? उस अजनबी ने घबराई आवाज में कहा, मैं एक बदतरीन खबर लाया हूँ। तीतुस के 500 आदमियों ने मुसलमानों की बस्ती हाविया पर हमला किया। उन्होंने बस्ती के एक घर को लूटा। जो जवान लड़ने के काबिल थे उन्हें कत्ल कर दिया गया और जो जवान लड़कियों को उठा कर ले गए हैं उनमें से बस्ती के सरदार की बेटी उमेमा भी शामिल है। इन जालिमों ने बस्ती के बूढ़े सरदार उमेर को भी कत्ल कर दिया है। मैं भी उसी बस्ती का रहने वाला हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। हमने सुन रखा था कि यहाँ कोई आमिर बिन नाफे आए हैं जो सरहदी मुसलमानों की हिफाजत का इंतजाम कर रहे हैं। मैं पहले आपका मुस्तकिल में गया था, वहां से मुझे खबर हुई कि आप इस तरफ आए हैं। आमिर का हाथ गुस्से में बेसाख्ता अपनी तलवार के दस्ते पर चला गया। उसने नकीब की तरफ देखते हुए जहरीली आवाज में कहा, नकीब फौरन मुस्तकिल से 300 जवानों को मुसले करके लाओ। मोनिस ने इतराज करते हुए कहा, या अमीर, 500 के मुकाबले में सिर्फ 300, जबकि हमारे पास अब हजारों तरबियत याफ्ता जवान है। आमिर ने जुनूनी लहजे में कहा, मैं उन्हें सबक दूंगा कि हम आधी कुव्वत में भी उन्हें इबरतनाक सजा दे सकते हैं। नकीब घोड़े पर सवार होकर मुस्तकिल की तरफ चला गया। आमिर ने मोनिस की तरफ देखते हुए कहा, हाविया की ये बस्ती किस तरफ है? मोनिस ने कहा, ये 15 मील नीचे मशरिक की तरफ है। उस वादी जबला से बाहर मुसलमानों की अनगिनत बस्तियां हैं, ये जिन्हें तीतुस अपने तरकताज का निशाना बनाता है। इसके अलावा तीतुस के अपने इलाके भी मुसलमानों की काफी बस्तियां हैं। आमिर ने एक मजबूत अज़म के साथ कहा, हम उन सब बस्तियों की हिफाजत करेंगे। आने वाले अजनबी ने कहा, ये यहाँ से 15-20 मील नीचे जबली नदी थोड़ी देर के लिए हमवार जमीन से गुजरती है और यहाँ से पुल के बगैर ही पार किया जा सकता है। तीतुस के आदमी वहीं से नदी पार करके हमलावर होते हैं।
अगर हम वक्त ज़ाय ना करें तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं कि वो अपने शहर हरम जाने के लिए मशरिक शुमाल मगरिब की रुख पर सफ़र करेंगे और हम सामने वाले पुल को उबूर करके एक मुख्तसर कावा काटने के बाद उनकी राह रोक सकते हैं। आमिर ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तुम इत्मीनान रखो, हम उन्हें भागने ना देंगे। जरा रुक कर अजनबी ने फिर कहा, उन्होंने अभी कोई ज्यादा फासला ना तय किया होगा, क्योंकि वो नदी को उस जगह से पार करेंगे जहाँ ये मैदानी इलाके की बहती है और पानी की गहराई कम हो जाती है। वहां से अपने शहर हरम की तरफ जाने के लिए उन्हें कोहिस्तानियों के अंदर एक तवील चक्कर काट कर फिर उसी शाहरा पर चढ़ना है जो आपके सामने से रासू शमरा की तरफ से आती हुई शुमाल मगरिब की तरफ गई है, और यही वो वही शाहरा जो इनके कोहिस्तानियों के अंदर से होती हुई हरम और वहां से अंताकिया की तरफ चली गई है। वो अंताकिया और हरम की तरफ जाने की एक और बड़ी शाहरा भी है जो जुनूब की सिम से दरियाए आसी के किनारे किनारे आती है, लेकिन वो एक बहुत तवील चक्कर है और वो सिर्फ उस मुसाफिर के लिए सूदमंद है जो जुनूबी शहरों की तरफ से सफर करके अंताकिया की तरफ आए हैं। वो अजनबी खामोश हो गया क्योंकि नकीब 300 मुस्लिम जवानों को लेकर आ गया था। आमिर, मुनीस और अजनबी भी घोड़े पर सवार हो गए। फिर उस मुख्तसर से लश्कर को लेकर, जिसकी तादाद सिर्फ 300 थी, जुए जबला पार करने के बाद शुमाल के रुख पर अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा रहे थे। मुनीस और अजनबी दोनों ही उनकी रहनुमाई कर रहे थे। जल्द ही उन्होंने उस वक्त दुश्मन को जा लिया जब वो तंग पहाड़ी दुरों से निकलकर शाहरा पर चढ़ने वाले थे। आमिर इस तरह उनका रास्ता रोक खड़ा हो गया जैसे कोई जहरीला सांप अपने इर्द गिर्द के राहों को वीरान करके खौफ और दहशत फैला देता हो। उन्हें देखते ही आमिर ने उन पर हमला कर दिया। तुर्तीस के सिपाहियों को इससे कबल ऐसी वारदात का सामना न करना पड़ा था, क्योंकि वो तो मुसलमानों को लूट कर किला हरम के खजानों में इजाफा करने के आदी हो रहे थे। कोई उनकी राह रोकने वाला ना था, कोई उनके सामने हाजिर होने वाला ना था। लिहाजा उन्होंने आमिर और उसके मुख्तसर से लश्कर को भी कोई अहमियत ना दी थी। उनकी आंखें उस वक्त खुली जब आमिर ने उनका कत्लेआम शुरू कर दिया था। तुर्तीस के आदमियों ने कुछ मुसलमान लड़कियों को भी अपनी हिरासत में ले रखा था। इसके अलावा उनके लश्कर की उस्त में 4 घोड़ों की बग्घी भी थी, जिसके घोड़े जंग शुरू हो जाने की वजह से बुरी तरह हिमनाने लगे थे। तुर्तीस के आदमियों ने उन मुसलमान लड़कियों को अपने घोड़ों से गिरा दिया जिन्हें उठाकर लाए थे, और जंग की भट्टी में कूदने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़े थे। उनके पीछे जो सामान से लदी हुई खिरचीनें थी वो भी रुक गई थी। जिस मुमारसत और तरीके जंग आवरी के साथ आमिर ने तुर्तीस के आदमियों पर हमला किया था वो उसके आदी न थे। आमिर अपने साथियों के साथ तेज धार खंजर की तरह उनके अंदर दूर तक घुसता चला गया और आन के आन में उनकी सब बंदी जंगी तंजीम और हौसलों को दरहम बरहम और शिकस्त कर दिया था। तुर्तीस के आदमियों ने जब देखा कि उनके आदमियों की तादाद इस हद तक कम हो गई है कि उनके लिए मैदान में जमकर मुकाबला करना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है, तो भागने की तैयारी करने लगे थे। आमिर भी उनके इरादों को भाप गया। लिहाजा उसने चिल्ला चिल्लाकर अपने साथियों को खबरदार किया कि दुश्मन का कोई भी आदमी भागने ना पाए। इसका खतरा हुआ और फिलफौर असर हुआ। मुसलमानों ने चारों तरफ से घेर कर दुश्मन का सफाया करना शुरू कर दिया था। जल्द ही मैदान खामोश हो गया और दूर दूर तक दुश्मन की लाशें बिखरी दिखाई दे रही थी। आमिर ने एक बार अजीब से आलम में मैदान के चारों तरफ देखा। उसके चेहरों पर अभी तक खुद का आहिनी नकाब गिरा हुआ था। अचानक आमिर का सर अपने घोड़े की जेन की आहनी पर झुक गया और उसने गहरी दिक्कत और इंतहाई कुर्ब इज्जत में कहा, ऐ परवरदिगार आलम, तेरा सद एहसान कि तूने मुझसे बेकिरा और कतर को फतह और नुसरत से हमकिनार किया। तेरा शुक्र है मौला। एक बार फिर उसने सर उठाकर देखा। उसके पीछे उसका लश्कर था और सामने बग्घी के करीब मुसलमान लड़कियां बेकस और बेचारगी की हालत में खड़ी थी। आमिर आगे बढ़कर पहले बग्घी के करीब आया। उसने जब बग्घी के गिरे हुए पर्दों में से एक को हटाकर देखा तो तंग रह गया। बग्घी के अंदर एक हसीन तरीन लड़की थी जो रिस्क के लिबास पहनी हुई थी और चेहरे पर उसने सफेद जाली का निकाब डाल रखा था, जिसमें उसका सुर्ख और सफेद और हसीन चेहरा यूं दिखाई दे रहा था जैसे हल्का शब में लाल बदख्शा और हसीन खूबसूरत और दिलकश थी, जैसे यफ्ताई की लज्जत, जैसे खामोशी का सहर, जैसे लहरों की तड़प और जज्बात का हिचार। उम्र में वो लड़कपन की आखिरी सरहद और जवानी की पहली सीढ़ी पर थी। आमिर को अपने सामने देखकर वो खौफजदा सी हो गई थी और उसके चेहरे पर सरसों के फूलों से पिलपिलाहट फैल गई थी। ताहम वो आमिर को देख ना सकी क्योंकि उसने अपने चेहरे पर खुद का नकाब गिरा दिया था। आमिर ने उस नौखेज लड़की के गले में लटकती हुई सोने की सलीब की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और मरने वालों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? लड़की खौफ से कांप रही थी, लिहाजा वो कोई जवाब न दे सकी। आमिर ने उससे की ढारास बताते हुए कहा, तुम कोई अंदेशा ना करो, हमसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। लड़की संभल गई और फिर उसने अपने दिलकश और पुरअसरार और ख्वाबगेज आवाज में कहा, मेरा नाम राशिद है और मैं अंताकिया के एक रईस की बेटी हूँ।
लड़की जब खामोश हो गई तो आमिर ने फिर पूछा, लेकिन इन मरने वालों से तुम्हारा क्या ताल्लुक? इस बार लड़की ने अपने भिपरे भिपरे जिस्म को एक बल दिया। फिर उसने कहा, ये तुम्हारे हाथों मरने वाला किला हरम के हाकिम तीतुस के आदमी है। तीतुस का छोटा भाई यौरोगाक मेरा मंगेतर है। मरने वाले सब मुझे जानते हैं। इस वक्त मैं रासुस शमरा से आ रही थी, वहां मेरा नानिहाल है। रास्ते में इन लोगों से मुलाकात हो गई। इन्होंने मुझे इस इरादे से अपने साथ ले लिया कि मुझे अपनी हिफाजत में अंताकिया छोड़कर आएंगे। आमिर ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा, तो क्या तुम रासुस शमरा से अकेले सफर करती आ रही हो? लड़की ने इस बार अपनी आंखों को पूरी सहरकारी से आमिर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे साथ 2 मेरे मुहाफिज और एक रईस था और एक साइस था। आमिर ने ताजुब से पूछा, वो किधर गए? लड़की ने फिर शौक आवाज में कहा, अगर तुम उन्हें कत्ल ना करो तो मेरे एक ही इशारे पर वो यहाँ आ जाएंगे। आमिर ने मुस्कुराकर कहा, मैं उन तीनों की जान की अमान लेता हूँ। लड़की ने बग्गी के निचले हिस्से की तरफ मुंह करके कहा, तुम तीनों बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा। आमिर के देखते ही देखते 3 मुसले जवान बग्गी के निचले हिस्से से बाहर निकल आए। लड़की ने फिर कहा, जंग के दौरान अपनी जान की हिफाजत के पेश नजर ये तीनों बग्गी के इस हिस्से में छुप गए थे। आमिर ने पीछे हटते हुए कहा, अब तुम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सकती हो। हम में से कोई भी तुमसे तारुज ना करेगा। आमिर के इन अल्फाज से राशेल के चेहरे पर कुंवारेपन की पूरी ताजगी बिखर गई थी। उसका हुस्न आसूदगी पाकर कुछ इस तरह धक कर उठ खड़ा हुआ था जैसे भड़कते शोले खड़े हो जाते हैं। वो जज्बात और खुशियों की ऐसी हसीन तूफान में खो गई थी जैसे रात के शुरू हिस्से का कुंवारापन खूब। आमिर जब पीछे हटने लगा तो राशेल ने पूछा, ऐसा लगता है तुम इन हमलावरों के सालार हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारे और मरने वालों के दरमियान क्या दुश्मनी है? आमिर ने गुस्सैली आवाज में कहा, मेरे और इनके दरमियान ऐसी ही दुश्मनी थी जैसे रेवड़ के गुदेड़े और भीड़े के दरमियान, जैसे रहबर और रहजर के दरमियान। आमिर खामोश हो तो राशेल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आमिर वापस मुड़ता हुआ बोला, नामों में क्या रखा है, मैं गुमनाम रहना ही पसंद करता हूँ। अब तुम जाओ, अपनी मंजिल को चली जाओ। काश हम इस हालत में होते कि बहिफाजत तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा सकते। राशेल के साइस ने बिग्गी के घोड़ों को हाँक दिया था। राशेल ने बग्गी का पर्दा गिरा दिया और आमिर पीछे हटकर नकीब के पास खड़ा हो गया था।